Hello everyone, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This reading is for my lovely Pisces for the upcoming week, that is 25th of Jan onwards, that is Monday. So it will be from Monday to Sunday for the coming week, not this week, so just keep that in mind, my loves. Okay. So if you're new to my channel, don't forget to like, subscribe and hit the bell notification, and if you are already a subscriber of mine, then thank you so much. I appreciate all your love and blessings that you send me. कमेंट सेक्शन में बताइए अगर रीडिंग रिजोनेट करता है तो दिस इज़ अबाउट योर पर्सनस करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन की आपके तरफ जो करंट फीलिंग है उसके बारे में ये रीडिंग होगी. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को डिटेल्स में रीडिंग्स और जानी है तो ज़रूर पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी ईमेल आईडी दी हुई है. अगर रीडिंग कभी कभी रेजोनेट ना भी करे तो दुख मत पाइए, आपके अदर साइंस जो है सन मून राइजिंग वीनस उसको चेक कीजिए, मेरे चैनल में आपको रीडिंग्स मिल जाएगी. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वी विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग. Your left side will be the person you are thinking of, and the right side will be your energy. So left side will be for the person Pisces is thinking of right now. Empress, okay. Could be a Taurus or any earth sign. 5 of Cups. They have a lot of regret. They can't sleep at night and have a lot of insomnia because they are very attracted to you. 9 of Cups. The Star. And the Queen of Cups. Okay, lovely energy. Queen of Cups is you are wishing for them to come back. Of course this is someone from your past with whom you had a lot of anxiety issues. You had a lot of mental health related problems due to this person that I completely see. And in the near future I feel like this person is having a lot of regret. Either you could be a Taurus or they could be a Taurus, and they want to come back to you. They could be an Aquarius as well, or any water sign, Pisces, Cancer, Scorpio in your life. You have a lot of love for them, okay, and you are wishing them from afar. मतलब आप उनसे दूर रह के उनके लिए विश कर रहे हो. आपके मन ही मन में पता है कि हाँ ये व्यक्ति को मेरे लिए रिग्रेट्स है, इस व्यक्ति मेरे बारे में सोचता है ये व्यक्ति. और मुझे लगता है ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचता है, स्पेशली रात को इनको नींद नहीं आती है. इनको ऐसा लगता है कि वेयर इज़ माई एम्प्रेस. बेसिकली आप एम्प्रेस हो उनके लिए, आप वो बेगम जैसे हो, एंड दे आर लाइक where is she and where is he. Okay, they regret, they do have a lot of regret, they have a lot of mental health issues, they can't sleep at night because they think of you and you. Whereas you are giving self love to yourself. Yes, you want this love, आपको चाहिए ये लव, ये जो आपकी प्यार है ज़िंदगी का, आपको वो चाहिए. आप देखते भी हो उनको एक विश फुलफिलमेंट के रूप में. आपको ऐसा लगता भी है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए परफेक्ट है, आई विश फॉर दिस पर्सन टू कम बैक. बट देन यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ लव टू योर सेल्फ एज वेल. क्वीन ऑफ कप्स, या you possess a lot of love, you want to be in love again, you want to love and take care of people, but at the same time you are doing this to yourself as well because you understand something now. because आपको एक चीज़ समझ आ गई है कि हाँ मुझे चाहिए एक व्यक्ति, या मेरे लिए वो एक विश के रूप में आ रहे हैं, वो मेरे लिए अल्टीमेट है, मेरे लिए सब कुछ है. बट देन मुझे खुद को भी प्यार करनी है, मुझे खुद को हील करनी है, मुझे खुद को नर्चर करना है, केयर करना है, एंड तभी जाके कुछ सही हो पाएगा. whereas this person is in a very bad mind. You are coming up in your reading which is good to see. आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आपको पता है कि चीज़ें कैसी हो रही है, आपको पता है कि इस व्यक्ति को रिग्रेट है एक सिचुएशन को लेके. व्हाट सिचुएशन? यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक दिस पर्सन हैज़ घोस्टेड यू. इस व्यक्ति ने आपको किसी भी तरीके से घोस्ट किया है, आपको मैसेज करना बंद कर दिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, या तो आपके साथ कम्युनिकेट करना ऑल ऑन अ सडन पूरा स्टॉप कर दिया हो. और आप विश कर रहे हो कि हाँ इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि इन्होंने क्या गलती की है. और मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति गलती का रियलाइजेशन भी हो रही है इनको कि हाँ आई घोस्टेड समवन एंड दे फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड एज वेल. उनको ऐसा लगा था कि हाँ आपको ऐसे छोड़ के वो खुश रहेंगे, आपको टिट फॉर टैट देंगे. बट देखिए कर्मा होता है. इनको अभी खुद को रिग्रेट हो रही है कि क्यों मैंने ऐसा किया, ठीक है, क्यों मैंने ऐसा किया उनके साथ. एंड दे घोस्टेड यू एंड दे हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट फॉर घोस्टिंग यू.
उनको लगा था कि आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ सेल्फ लव टू योर सेल्फ। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, आप उनको और चेज़ नहीं कर रहे हो, उनके पीछे नहीं हो। और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इफ़ ही इज़ नॉट देयर इट्स ओके, इफ़ शी इज़ नॉट देयर इट्स ओके। और इसलिए इस व्यक्ति को अभी रिग्रेट्स हो रही है कि हाँ क्यों ऐसा हो गया, क्यों मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा क्या हो गया कि मेरा एम्प्रेस मुझसे छीन ली गई, ठीक है। एंड आई फील लाइक यू लेफ्ट देम बिकॉज यू फेल्ट लाइक कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, या तो इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने किया होगा, इन्होंने ऐसे दुष्टाना हरकतें की, हाँ इन्होंने बंद कर दी बातें करनी। और आई थिंक इन्होंने बंद कर दी बातें करनी, और आपको भी बहुत सारे स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंग्जाइटी हुए उस टाइम पे, पर आपको भी समझ आ गया कि मुझे खुद को प्यार करनी है, खुद को लव देनी है, एंड तब जाके चीज़ें सही हो पाएगी। और अभी ये व्यक्ति सोच रहे कि हाँ ओके, आई एम हियर सफरिंग सो मच एंड दिस पर्सन इज़ ऑल गुड गिविंग लव टू देमसेल्व्स। उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इतनी मेंटल प्रॉब्लम से जा रही हूँ, तो इतना मेंटल प्रॉब्लम से जा रहा हूँ, एंड वेयर इज़ द पर्सन आई लेफ्ट इज़ डूइंग ऑल फाइन, ओके। एंड आई फील लाइक दैट्स वेयर they are like not feeling good. Knight of Pentacles and the High Priest. Okay, you could be receiving some, definitely could be a Taurus in your life, or they could have Taurus in their chart. The Knight of Pentacles could be a Virgo or Capricorn as well. I think they are very slow with their commitment. उनको commitment issues थे, या तो वो खुद married हो सकते हैं, या तो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं वो इंसान, एंड या तो उनके खुद के कुछ कमिटमेंट्स हो सकते हैं ज़िंदगी में, जिसके लिए वो अभी आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं। पर मुझे ये साफ दिखता है ये व्यक्ति अपना जो कमिटमेंट है ना लाइफ के, उसमें भी खुश नहीं है। ये व्यक्ति अपने लाइफ के कमिटमेंट्स जो भी है, अगर वो किसी से टाइड अप है, वो खुश नहीं है। उनको आपकी तरफ ही आना है, पर चीज़ें बहुत स्लो जा रही है, वो चीज़ों को स्लो ले रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को बहुत सारी हीलिंग के अंदर से जानी है, क्योंकि उनको खुद को बहुत सारे रिग्रेट्स है, एंड दे रिग्रेट द रिलेशनशिप। अगर वो मैरिड है या तो कोई रिलेशनशिप में है स्ट्रॉन्ग, तो दे रिग्रेट दैट रिलेशनशिप, दे आर नॉट हैप्पी इन साइड दैट रिलेशनशिप, बट स्टिल दे कांट मूव ऑन ड्यू टू सम पास्ट ड्यूटीज़। अगर वो आपके तरफ आते हैं, थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है, थोड़ा स्लोली शायद आए, बट दे आर डेफिनेटली प्लानिंग फॉर यू। दे कुड बी यू नो एरिस, बट या डेफिनेटली उनको अगर कहीं अगर मतलब इनको अगर आपके तरफ आनी है, तो इनको कुछ एक सिचुएशन को ख़ात्मा करके आनी है। मतलब कोई एक सिचुएशन, कोई एक बाउंडेशन, कमिटमेंट है उनके लाइफ में, जिसको फिनिश करके ही वो आपके तरफ आ सकते हैं। और उस चीज़ को फिनिश करने में उनको टाइम लग रही है, उनको अभी तक रियलाइजेशन के अंदर से वो जा रही है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। और जब उनको ये समझ आ जाए, वो जब उस साइकिल को एंड कर दे, तभी आपके साथ एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। But till then, you are taking care of yourself, you are good, you are happy, you are content, and that's what it is. And this is a lovely read for all my Pisces people. Now let's see his actions. His actions or the actions that are in his mind for now. Thinking when they're thinking of, ओके या आई थिंक दिस कुड बी अ वर्क कमिटमेंट एज वेल। अगर वो किसी चीज़ से कमिटेड है, तो वो एक वर्क रिलेटेड चीज़ भी हो सकती है, वो एक लियो हो सकते हैं। अ थिंकिंग मैन बेसिकली इज समवन हु इज़ थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ मूव। आई थिंक इट इज़ मोस्टली अबाउट सम जॉब, या तो उनके लाइफ का कोई सिचुएशन है जहाँ से वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, जहाँ से मतलब वो अभी भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो दिमाग से सोच रहे हैं, वो दिल से उतना भी ज़्यादा नहीं सोच रहे। और वो मतलब जो भी थॉट है उनके माइंड में, आई थिंक दिस इज़ अबाउट वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। इट कुड बी अ जॉब, इट कुड बी अ रिलेशनशिप, एंड वंस दे वॉक अवे दैट, देन ओनली दे कैन कम टूवर्ड्स यू। इट कुड बी लाइक दे आर वेरी बिजी एट वर्क एंड दे आर वेरी कमिटेड टू वर्क, काम से बहुत ज़्यादा कमिटेड है, और उनको उस काम को छोड़ के आपके पास आनी होगी। कोई भी एक सिचुएशन ऐसा है, या तो ऐसा हो सकता है कि वो इतना बिजी है इसलिए आपको टाइम नहीं दे पाते, इसलिए जॉब बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है इनकी, और इनको वो खात्मा करके आपके तरफ आ सकते हैं, वो उस जॉब को ख़त्म करके। या तो अगर कोई रिलेशनशिप है, आई थिंक रिलेशनशिप में मॉनेटरी कोई इश्यूज़ है उनके, और उनके जो भी कमिटेड पार्टनर है उनके साथ, जब तक वो उस रिलेशनशिप को एंड नहीं करते, आपके साथ नया बिगिनिंग वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड दे आर थिंकिंग ऑफ यू, दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, यू आर ऑलवेज इन देयर हेड। आप उनके दिमाग में हर वक्त हो, वो आपके लिए सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं ऑफ़र करूँ, मैं कैसे ऑफ़र को लेके जाऊँ मेरे पाइसेस की तरफ। Okay, they're thinking of making an offer, but they can't make an offer until and unless they're walking away from some sort of commitment. This could be a commitment with their partner, or could be a commitment in a work situation. Okay, this could be anything. So this was your reading, my Pisces people.
I hope you liked it, and if you liked it, then subscribe and let me know in the comment section. Send me love and good wishes. I'm sending you from my side a lot of love, good wishes, and light for all of you. And take care. Bye.